Thank you, Rupesh. And now, though the last but the most exciting session which we are going to have, that is on the capital markets. May I request CA Amit Agarwal, Amit, to please escort our guest speaker, Siddharth Sidani ji, on the dais. And may I request all of you to please give a thunderous applause for our guest speaker, Siddharth Sidani ji, please. फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो जी बिजनेस फॉलो नहीं करते हैं? दैट मीन्स सर एवरीबडी हियर फॉलोज जी बिजनेस, और जो जी बिजनेस फॉलो करते हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिनको जो सिद्धार्थ सिदानी जी को नहीं जानते हैं. एंड फॉर अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ आवर गेस्ट स्पीकर टुडे, सिद्धार्थ सिदानी जी is the head equity advisor and products, is an MBA in finance and has more than 18 years of experience in equity markets. He is leading equity advisory and products and technical research in Anand Rathi for more than 8 years now. He has been managing research and leading equity products and worked with organizations like Sheikh Khan earlier in his career. He is one of the exclusive panelists on Z Business and runs his famous show Sid Ki Sip. He has a strong social media presence and shows like Shares Ki Baat Siddharth Ke Saath. With this, may I request our past president, CA Rajesh Singhania, to please come forward and welcome our guest, Shri Siddharth Sidani ji, with a flower bouquet. Thank you, sir. Sir, the format of this particular session would be, we'd first request sir to have a keynote for the first 10-15 minutes, and then we'll have a fireside chat with Siddharth Sidani ji. So, sir, over to you. Good evening, everyone. Namaskar. I think end of the session, the Josh is less. So, thank you, the VIP chapter CA Institute to invite me for this session. Thank you so much. Thank you, Neeraj ji. Thank you, Rahul ji, for inviting me on this platform to speak on it. Actually, मैं नंदा साहब को मिला था. अभी मैं एक एनमी के प्रोग्राम में था सुबह, तो मैं निकल रहा था और नंदा साहब आ रहे थे. We have done few of the sessions together also in Ahmedabad, in other locations, in other chapters. So coming here, a two benefit for me. दो खुशी की बात है मेरे लिए यहाँ आना, और आज के दिन पे क्यों दो बेनिफिट है, दो खुशी की बात है. First, of course, I am a Calcutta boy myself, so back home. So thank you CA Institute for calling me back home. अभी तो खैर मैं मुंबई हूँ. And the second reason is, of course, it's an International Women's Day. On a special occasion of International Women's Day, I'm here. So happy Women's Day to the women's and men's also on a special day of today. Just to start up with the session, that how things are in the capital markets, although I've been allocated some 10-15 minutes, 10-15 minutes में कुछ होता नहीं है हमारा. But still, just to start up with Women's Day, वुमेन की दो खूबी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैपिटल मार्केट से को रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनिएगा सब. एंड आई थिंक यू कैन रिलेट, all the men's can relate with the women's they have in their lives, and women's of course they can relate with themselves. The first is they are astute thinker, बहुत सोचते हैं.
और सोच के समझ के डिसाइड करते हैं। और मार्केट में सोचना बहुत जरूरी होता है कि आप, बहुत जन मुझे, अभी मैं आ रहा था तो पूछ भी रहे थे, सुबह भी था मैं, तो बहुत जन बोल रहे थे क्या करना, क्या है करना, क्या है करना, कुछ नहीं है, सोच के समझ के डिसीजन लेना है। और दूसरा, which is very important at the current stage, any given point of time of the stock markets, is the sixth sense. Women have a very good sixth sense, और वो सिक्स्थ सेंस उनको बहुत कुछ फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव दिखा देती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कोरिलेटेड विद द इक्विटी मार्केट्स। विद दिस आई विल कम टू द पॉइंट इज अबाउट स्टॉक मार्केट्स। हम बात करते हैं कि मार्केट में हालत तो खराब है, सबके मन में बहुत क्वेश्चंस, बहुत चिंताएं, कंसर्न्स होंगे, एम आई राइट? हाँ हाँ हाँ। सो विद दिस, जब भी हमने करेक्शंस देखे हैं पहले, जब भी हमने करेक्शंस पहले देखे हैं हिस्ट्री में, वो हम हमेशा आज अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं कि तब इतना परसेंटेज मार्केट गिरा था तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो लेवल निफ्टी का था, वहां से कहां तक आ गया, एम आई राइट? पर जब करेक्शन अभी होता है तो वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, पैनिक होता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं लेते हैं। हिस्ट्री में तो लेते हैं, क्योंकि तब तो हमने हाइंडसाइट पे देख लिया कि वो करेक्शन के बाद मार्केट ने कितना बड़ा उछाल दिया, कितना बड़ा रिटर्न दिया, तब से लेके अभी तक। बट अभी जब करेक्शन आया है तो वो पैनिक का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स द चैलेंज एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू विच मार्केट शोज। कुछ एक शॉर्टकमिंग्स या कुछ एक पॉइंट्स जो अभी रियलिटी चेक की बात करूं, बहुत जन कहते हैं कि भाई एफआईआई क्यों चले गए, व्हाई डिड वी गॉट सो मच ऑफ अ सेलिंग इन द मार्केट्स थ्रू एफआईआई, क्या हो क्या गया? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इज हार्ट। डू यू अग्री? एंड व्हाट्स द हार्ट ऑफ द मार्केट? What's the heart of the market? Yes? Profits. In simple terms, in market terminology, it's called as earnings. अगर एक डेटा की बात करूं तो पिछले लास्ट ईयर FY24 इंडियन मार्केट्स ग्रू अर्निंग्स वाइज 12%, 12%। पिछले 4 साल FY20 से लेकर FY24 CAGR 20% का ग्रोथ देखा गया, 20%। जबकि ये पिछले 9 महीने में Q1, Q2, Q3 तीन तिमाही में सिर्फ 5% के ग्रोथ आए, ओनली 5%। यही तो दिखाता है कि कहां पे अर्निंग ड्रॉप हुआ। कुछ एक और शॉर्टकमिंग्स, हम कई साल से अगर बात करें तो 14-15% के आसपास का हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी, जबकि चाइना का कंट्रीब्यूशन है करीबन 26% का। आज अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वी आर जस्ट 2.2% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, वेयर एज चाइना हैज बीन एक्सपोर्टिंग क्लोज टू 14.4%। और भी कई सारे मैकेनिज्म्स जहां पे वी आर फॉलिंग शॉर्ट, और अर्निंग्स के कारण वेयर वी हैव सीन अ बाउट्स ऑफ करेक्शन, इसी के कारण एक करेक्शन मार्केट में देखा गया। बट ये सब हम सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बट हावी क्या करता है? व्हाट इज देयर बैक ऑफ आवर माइंड, व्हाट इज देयर इन आवर माइंड राइट नाउ इज वो लाल रंग ही दिखता है, होली का नहीं, स्क्रीन का। बट जब हम एवरीडे के मार्केट्स देखते हैं, जब हम वो करेक्शन देखते हैं, तो वी जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, निफ्टी सोमवार क्या करेगी, क्लोजिंग क्या आएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स तो ओपन पोजीशंस देख रहे हैं, बट हम फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। हमें पता है, बट जब हम लेने की बात करते हैं तब नहीं देख पाते। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच वुड बी ग्रोइंग द हाइएस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, आने वाले 10 साल की बात कर रहे हैं। फॉर नेक्स्ट 10 years इंडिया वुड बी ग्रोइंग बाई 6.5 to 7%, जबकि चाइना 5% से कम से ग्रोथ देगी आने वाले 10 सालों के लिए।
India is the only country which will be adding up $1 trillion every 1.5 years for next 6 years. India would be the only country which will be seeing double the exports in next 10 years. आज जो $800 बिलियन के एक्सपोर्ट्स है वो करीबन $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे. इंडिया वुड बी द ओनली कंट्री जहां पे कंज्यूमर स्पेंडिंग्स जो आज 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स पे है वो आने वाले 10 साल में 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकते हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री जो आज 1.5 लाख किलोमीटर्स के रोडवेज है भारत के पास. जो 90,000 से 1.5 लाख पे हम पहुंचे हैं. इट्स द ओनली कंट्री फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स विल बी एडिंग 50,000 किलोमीटर्स. जो 1.5 लाख किलोमीटर है वो 2 लाख किलोमीटर हो जाएंगे. अभी मैं सुबह को एनमी की मीटिंग में था. वहां पे रेगुलेटर से, सेबी से, एक्सचेंजेस से, डिपॉजिटरी से सब डिग्निटरीज आए थे. बातचीत हो रही थी अमृत काल की, विकसित भारत 2047. अब विकसित भारत की बहुत सारी बातें हुई, विजिबिलिटीज की बात हुई, वैल्यू की बात हुई, विजन की बात हुई. और हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब तो उन्होंने जो विजन दिया है उसके पीछे सब चल पड़े. पर हम क्या देखते हैं कि भाई मल्टीपल्स कहां आएंगे. सिंस आई एम टॉकिंग टू द सीए इंस्टीट्यूट, ऑल आर सीएज, द बैकबोन ऑफ अ बैलेंस शीट, इफ आई कॉल इट सो. हम मल्टीपल्स तो समझते हैं, एक्स मल्टीपल्स. अब मल्टीपल समझते हैं आने वाले 10 साल में अमृत काल के विकसित भारत के मल्टीपल्स. अब मैं आता हूं स्पेसिफिक सेक्टर्स में. डू यू नो, हम बहुत बार बात करते हैं साहब डिफेंस से तो हम परेशान हो गए हैं, उसके स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, चलते ही नहीं है, क्या करें. Am I right? आज जो डिफेंस है जो करीबन 55 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वो आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में 10x ग्रो होगी. इट विल बी क्लोज टू 560 बिलियन डॉलर्स. चलिए 10x, इससे मन नहीं भरा. लेट्स गो लिटिल अहेड. केमिकल स्पेस विच इज क्लोज टू 50 बिलियन डॉलर्स ऑफ द इंडस्ट्री, वो यहां से 20x ग्रो हो सकता है. इट कैन बी क्लोज टू 800 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम हियर ऑन. 800 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है. 20 टाइम से भी मन नहीं भरा. लेट्स गो टू क्लोज टू 50 टाइम्स. EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 45 गुना ग्रो हो सकती है, जो अभी सिर्फ 25 बिलियन डॉलर की है. 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर बन सकती है. 45x. हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अमृत काल. सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड लुक एट rather than only looking at some of the pitfalls. जो एक लंबी रेस में छोटे बड़े pitfalls तो आते रहते हैं. This is part of that pitfall. Of course everybody is worried. आप, मैं, mutual fund investor, direct equity investors, everybody is worried. But let's not forget that big picture in front of us, जो बहुत बड़े multiples हमारे लिए ला सकते हैं और लाएंगे. So I believe, since I've been given 10-15 minutes, I may have consumed little more than that, but I believe this is the time where one has to go out for shopping. ये समय है शॉपिंग का, ये समय है सही चीज ढूंढने का. करना क्या है, यही सब आप सोच के, ये कैपिटल मार्केट्स का जो आप पूरे बैनर्स देख रहे हैं, सोच के आए होंगे. करना क्या है वो बताइए. सो करना ये है, हम सब SIPs तो करते हैं, am I right? बट स्टॉक SIP करिए. और स्टॉक SIP में भी ये जो गिरावट है इसका फायदा उठाने के लिए मंथली नहीं, वीकली SIP करने की जरूरत है. आइडेंटिफाई अ लिस्ट. अगर आपने आपकी वॉच लिस्ट नहीं बनाई है तो बना लीजिए. और आई एम श्योर आई एम टॉकिंग टू अ मोस्ट वाइज सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो आपने बनाई रखी होगी. ये जो वॉच लिस्ट है इसमें वीकली SIP करें. सेकेंड,
क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे नीरज जी के पास, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं अभी दे दे रहा हूं तो हो सकता है कि दे मस्ट बी लेफ्ट विद नथिंग टू आस्क। दूसरा ये है कि आपको देखना है ग्रोथ ओरिएंटेड, क्योंकि ग्रोथ, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, आपको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही देखना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अलाइनमेंट चेंज हुई है ग्रोथ की, अर्निंग्स की, अब एक्सपेक्टेशन भी रीजनेबल होनी चाहिए। और जब एक्सपेक्टेशन रीजनेबल हो जाएगी रिटर्न की, तो आपको डिविडेंड की तरफ ध्यान देना है। सो योर पोर्टफोलियो मिक्स शुड बी अ वेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो, एडेड टू दैट सम ऑफ द ETFs, क्योंकि मार्केट में गिरावट शार्प हुई है पिछले 5 महीनों में, देख लिया हमने। ये शार्प गिरावट के कारण ETFs एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है आप सभी के लिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट करना क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो है RRR। फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, इट्स RRR, रेगुलर रिव्यू एंड रीबैलेंस। ये करना बहुत ही जरूरी है। यू, मी, एवरी वन ऑफ अस, व्हेन वी बाय अ कार, 6 months 12 months हम उसको सर्विसिंग करवाते हैं। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ योर कार इज, सर्विसिंग जरूर कराते हैं। योर पोर्टफोलियो ऑल्सो नीड्स द सेम, रेगुलर रिव्यू विथ रीबैलेंस। क्योंकि रिव्यू खाली करने से कौन सा कुछ जाना चाहिए और कुछ आना चाहिए, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच विल बीट ऑल द डायनामिक्स एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। सो विद दिस करना क्या है और कहां पहुंचना है, these were the few points which I wanted to highlight. If any questions are left with the distinguished CA members Neeraj ji and unke paas, तो I am ready to answer. Thank you. So we'll have the questions a bit later. We have the fireside chat. I think most of the questions would be answered during that discussion. So by the way, I am a Calcutta boy. I have come back to Calcutta. You have called me, given me opportunity to come back to Calcutta. Of course, I'm going to stay back and answer all your questions and then only move on. So, thank you. Thank you, sir. So next half an hour, 40 minutes, we'll have a lot of questions for Siddharji from my side and then from your side. And let's see what we can take back as doables after this session. So sir, as you mentioned, you're a Calcutta boy. Can you take us through your journey from Calcutta to Mumbai, from finance to the capital world? A brief about what made you choose this sector of capital markets. In short, you're trying to understand how yahan pe ghuse kaise? How did you enter there? Well, I'll go back to the history, and that's a good question to ask, because that will also give me a rethink, rejoice of the memories. I'll give you a small example. When I was in class 10, 9, 10-ish, my uncle had a retail store. He had a retail store here in Calcutta. And because, there's a segmentation of B2B and B2C. They were more of B2B, B2C. And B2C is आप बहुत ज़्यादा interaction करते हो, customers आते हैं, तो मज़ा आता है. Although my father had a B2B business. तो मुझे लगा कि ये B2C में बहुत अच्छा है, चलो जाके कभी किसी दिन बैठते हैं. So I went, I used to go to my uncle's store. There my cousin was there, and that point of time, I remember these 90s moments, he used to invest in markets. And that point of time, if you recall, many of the veteran investors I can see, इकोनॉमिक टाइम्स में 13, 14, 15 पेज में प्राइजेस आते थे, भाव आते थे स्टॉक्स के. आई डोंट नो हाउ मच यू रिकॉल. तो बहुत बार क्या होता था कि मेरे कजिन के पास कुछ स्टॉक्स थे, तो वो भाव लिखने के लिए ही यूज्ड टू टेल मी कि ओके सिद्धार्थ, वुड यू एबल टू हेल्प मी दिस. आई नेवर न्यू व्हाट्स इट, क्या है, क्या कौन सा पीला रंग का पेपर देख रहे हैं, मुझे पता नहीं था. सो आई सॉ दैट, I understood, and I started learning a bit कि क्या है क्या नहीं है. And from there the interest of capital market started. So if your question is
From where did the seed come from? The seed was from here. So then how did it germinate and how did it grow to this wonderful tree now, and your association with Z Business and Anand Rathi, which you are part of now? So what made you choose these directions, or how you got associated with Z Business, with Anand Rathi, and how has that influenced you as a ace investor? Well, let me tell you, my media journey was also very interesting. I never planned it that way. I was not a, I was never having that vision that I want to be on the media, on the screens and all that. So I will not give you all that filmy history stories. So it was of course not that, but somehow I happened to be writing few articles in many years back on the print medias. Once doing those articles and those people whom I was associated with, talking with, and those people went to the frame of the electronic media screens. And then steadily they asked me, okay, can you talk on this? Can you talk on that? Can you speak on this? And since then only I always used to have that understanding that whatever I have learned is to pass on. सीखना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सीख ही रहे हैं. So I always call myself a student of capital markets still, and I am still a student, and I wish till I die I happen to be a student only. Because कोई यहाँ पे कह ही नहीं सकता वो सीख गया है बाजार. So from there, slowly, steadily on the screens I was there, and that's how I happened to be a face on the media. And slowly, steadily, capital market में क्या होता है? एक चीज़ बहुत important है, जब सिंस आप लोग सब सीए है तो आप तो जानते ही हैं, नफा नुकसान तो अच्छे से जानते हैं. बाजार में सीखा एक ही तरीके से जाता है. वो क्या? पैसे खो के. पैसे खो के. एकदम सही. There is always a cost of learning, which I have also paid initial part of my career, and that excited me to know more, to recover those lost money. वो recovery करते 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 I happened to be a professional, and then my journey began, and then I was a part of Anand Rathi, and then everybody knows about what is the background. So that's how. A great journey, sir. So last year it was all about the US elections. Everybody was wishing Trump should come in power. And that is why when the election results were announced, we saw a sudden rally in the markets. When he is in power now, everybody is scared. So couple of questions. This is, are we facing a prolonged rough period, a potential crash, or an investment opportunity? And secondly, are we at a turning point wherein we can say this was the era pre-2025 and this is an era post-2025? Well, the second question to be answered first. The era of change of era. To an extent I agree. मैं मानता हूँ कि ये era में थोड़ी बहुत बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि जो 2020 का सिचुएशन था कोविड का, तब रीसेट का बटन प्रेस हुआ था. हम सभी के बिजनेस, काम, सब एवरीथिंग गॉट इम्पैक्टेड. रीसेट का बटन ये हुआ कि भाई थिंग्स गॉट, इंडियंस really took it very strongly. Threat of life was there. Markets also saw lot of threat. और वहाँ से हमने अर्निंग स्टार्ट की. तो एरा में जो चेंज हुआ है वो है रीअलाइनमेंट, और ये रीअलाइनमेंट अर्निंग्स का है. और जब अर्निंग्स की रीअलाइनमेंट होती है तो मार्केट प्राइसिंग की भी, रिटर्न की भी और परफॉर्मेंस की भी रीअलाइनमेंट साथ में ही हो जाती है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन 2020, 22, 21, 24 वो एक्सपेक्टेशन लेके बाजार में निवेश अभी भी कर रहे हैं और करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगा. Because you need to have a reasonable expectations of performance from the market, because it's in realignment of earnings. क्या हम वापस वो अर्निंग्स के एरा में पहुंच पाएंगे जो 2020 से 2024 में देखा? बिल्कुल पहुंच सकेंगे, पर क्या उसमें टाइम लगेगा? जरूर थोड़ा टाइम लगेगा. सो दिस रीअलाइनमेंट इज देयर. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, जो ट्रंप की बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में कि ट्रंप के सिचुएशन में अब जो मार्केट क्रैश हो सकता है, क्या हो सकता है? नाउ लेट मी गिव यू, वी आर स्क्रैचिंग द हिस्ट्री. 1996 के बाद, 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि
5 कंसेक्यूटिव मंथ्स में हमने करेक्शन देखा है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स मंथ आफ्टर मंथ, और पिछले 8 महीने के लो पे है प्राइसेस के हिसाब से। मैक्सिमम ऑफ द प्राइस करेक्शन जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो बता दूं, मैक्सिमम ऑफ द प्राइस करेक्शन इज डन। कुछ एक हो सकता है 2-4% और हो जाए, दैट्स ओके, बट टाइम करेक्शन, क्योंकि दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक प्राइस करेक्शन और दूसरा टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन मुझे लगता है कुछ और समय रह सकता है यहां पे। हावेवर गवर्नमेंट, आरबीआई, उन्होंने सबने अपना अपना रोल प्ले किया है। और कैसे? गवर्नमेंट, एज यू नो एंड हु नोज बेटर देन यू, जो टैक्स कट दिए गए, वो टैक्स कट जो किए गए वो कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। हम में से बहुत जन, यह चर्चाएं चल रही थी बाजार में कि जो बजट आया, बजट में इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बट इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान जरूर दिया गया है। भले नंबर्स सम सेम दिख रहे हैं हमें, 11.2 लाख करोड़ ऑफ केपेक्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, बट आप दो चीज और मिस कर रहे हैं, और वो है प्राइवेट केपेक्स। कई सालों के हाईएस्ट प्राइवेट केपेक्स इस साल में है 11,50,000 करोड़। साथ ही साथ स्टेट केपेक्स को मिस कर रहे हैं। स्टेट का भी केपेक्स करीबन 8.5 लाख करोड़ है। तो ये सारा केपेक्स भी जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, ये अगर ये भी हो जाता है एंड इफ इट इज कंप्लीटली स्पेंट, इट विल बी अ गेम चेंजर। तीसरा, आरबीआई। आरबीआई ने ऑफ कोर्स 25 बेसिस पॉइंट के रेट में कटौती की, 50 बेसिस पॉइंट की रेट की कटौती की एक्सपेक्टेशंस है। इसमें इन्होंने काफी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। अभी फिर से 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की बात की गई है, जो 2 टुकड़ों में होने वाले हैं, 50,000 ईच। सो ऑल दिस थिंग्स कल्मिनेटेड टुगेदर। क्रैश की जो बात है वो नहीं है, रीअलाइनमेंट की जो बात है वो जरूर हुआ है और जरूर आपके सामने है। बट ये इतना ही रीअलाइनमेंट हो गया, इसमें हम घबरा गए हैं, तो क्रैश की तो बात ही मत करिए। सर अभी सिचुएशन पहले ऐसी थी कि जब एफआईआईज पैसे निकालते थे मार्केट से, तो हम खुश होते थे कि उनके पैसे निकालने के बावजूद मार्केट सस्टेन हो रहा है, इनफैक्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे थे, हमारे डीआईआईज उसमें आ रहे थे। बट नाउ वी आर स्कैर्ड कि और वो कितना पैसा निकालेंगे। So, is there a global shift in the investment strategies? Yeah, what is this which we are failing to understand, or which we should understand as retail investors, or as novices, or as experts in this market? वेल, एफआईआई की नंबर्स की तो आप सभी को पता होगा, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू अ हाईलाइट, 3,20,000 करोड़ के करीब की जो आउटफ्लो हमने देखी है, करीबन 1.5 लाख करोड़ तो इसी कैलेंडर ईयर में आउटफ्लो हुए हैं। ये दो कारण से हुए हैं, और सबसे दो इंपॉर्टेंट कारण जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कहते हैं वो है डॉलर इंडेक्स, जो 109 पे था, जो अभी 104-105 के आसपास आ चुका है, एंड डॉलर इंडेक्स के फोरप्ले पे यूएस बॉन्ड यील्ड्स। एक टाइम पे 4.8% पे था 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो 4.4% के करीब आ चुका है। तो दीज वर द टू मेन रीजंस फॉर एफआई आउटफ्लो। ऑफ कोर्स द डोमेस्टिक अर्निंग्स, इसके साथ ही जो आउटफ्लो कहाँ रहा है और कितना और जाएगा, कितना और जाएगा का क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं है। बट ये जा रहा है ऑफ कोर्स बैक टू द सेफ्टी, सेफ हार्बर की तरफ, अमेरिका प्लस द अदर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक चाइना। ऑफ कोर्स चाइना हैज बीन अ बिग अंडर परफॉर्मर। आज अगर रियल एस्टेट की मैं बात करूं चाइना की, तो नेगेटिव रिटर्न्स पे है, जीरो की नहीं बात कर सकते, नेगेटिव रिटर्न्स पे है। बट नाउ दे आर स्लोली स्टेडीली, because of the stimulus package which they have given in last 1 year, which is again building up that. So of course some flows to emerging markets like China and some flows heading back to the country, but I believe we are maximum done. I don't think we on the price point हम यहाँ से और बड़ी नीचे गिरावट देख सकते हैं। बट हाँ, जब शाम को कॉल आता है ऑफिस के बाद हम सभी के पास, या हम ऐसे कोई सैटरडे इवनिंग में राउंड टेबल में बैठते हैं 4 दोस्त, तो अलग अलग भिन्न भिन्न लेवल सबके पास होते हैं। कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 18,000, कोई कहता है कुछ भी
गिरावट में गिरावट के लेवल, और जब 26,000 की निफ्टी थी तो सब 30-35 हजार पे पहुंच गए थे. So these exaggerations of both the ends will always remain, but let's understand valuations reasonable हो चुके हैं. अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग्स की बात करूं, तो जो हम 20.5 टाइम्स पे थे वो आज हम 18.5 टाइम्स पे है. आज कच्चा तेल लोएस्ट एंड पे है. So there are lot of things which market is not able to see or avoiding, but yeah, this is part of the market. जब मार्केट गिरता है तो पॉजिटिव दिखता नहीं है, और जब मार्केट चलता है तो नेगेटिव दिखता नहीं है. So these are part of the markets, but I believe broadly we are done. So there was a recent comment from China to US. We are ready for all forms of war. फिर 2 दिन पहले मैंने पढ़ा, it is the best scenario if elephants and dragon can dance together. Are we going to see that scenario wherein the elephant and dragon can dance together and fight US? Or how do we see this global synergies or global the tensions working out, and where do we see India in that position? And then we'll come to the sectors and the stock specific aspects here. देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो ट्रेड वॉर है या टैरिफ वॉर है ये कहीं थमने वाला है. ऑफ कोर्स थमने तो नहीं वाला होता है. आपको कितना ध्यान देना है या हमें मार्केट को कितना ध्यान है, आप मतलब मार्केट ही हो गए, आप और हम कलेक्टिवली मार्केट है. मार्केट को कितना ध्यान देना है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा. गो बैक टू द लास्ट एरा. और जब लास्ट एरा में, डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ यू इन द ऑडिटोरियम, डू यू रिमेंबर इन 2016 which day President Trump got elected? That was a very important day because other development also happened in India. Yes, bang on. Demonetization. So that both the events happened on the same day. People were talking about विनाश हो जाएगा, कि ऐसा लीडर आया है कि विनाश हो जाएगा. आज वो जो मैग्नीट्यूड था ना 2016 में, तब भी करेक्ट किए थे, वो मैग्नीट्यूड आज कम हो गया. ऑफ कोर्स साइज ऑफ द बिजनेसेस भारत के यूएस के साथ या दूसरे कंट्रीज के यूएस के साथ बहुत बढ़ गए हैं. आज हम 130 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है यूएस के साथ, जो 500 बिलियन डॉलर जाने की बात कर रहे हैं. आज ऑन एन एवरेज की बात करूं तो इंडिया ने जो ड्यूटीज लगाई है यूएस गुड्स पे वो 9% है, जबकि यूएस ने जो इंडिया पे ड्यूटीज लगाई है वो 3.5% है. चर्चा है तो बहुत सारे अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं. अभी मैं ऊपर बैठा था आप सभी के साथ, तो चर्चा है पहले ट्विटर में चलती है फिर आते हैं बाजार में. और जो ट्विटर में चर्चा चल रही थी कि भाई बहुत बार इंडिया का नाम लिया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा कि भाई ड्यूटीज बहुत लगा रहे हो. प्लानिंग ये चल रही है ऑन द बैक ऑफ द एनवेलप कि भाई जीरो ड्यूटीज हो जाए दोनों तरफ से. सो हाउ इंडिया, मुझे लगता है कि इवेंचुअली with the 4-year term which we have of President Trump, India would be all in all positive and beneficial of his policy, barring some of the policies which will definitely impact us, but overall मुझे लगता है कि India would be into a beneficial position. So अभी तक के डिस्कशन में मैं ये समझूं कि हालत खराब नहीं है. We are not on ventilator. It was just a small flu. And we are reaching the close of that period, and going forward next few months we are in a better position, in a better cycle. So होली में, आज के दिन होली में रंग जो है वो लाल है. दिवाली, क्या हम दिवाली के पहले मना पाएंगे या उसके पहले, दिवाली के बाद मना पाएंगे? देखिए ऐसा है कि लाल और हरे रंग दोनों ही पार्ट ऑफ द मार्केट है. आपने जब दोस्ती की है पैसे बढ़ाने की मार्केट के साथ, तो नेचर को समझना पड़ेगा. हम हमारे पार्टनर स्पाउस के नेचर को समझते हैं, सही गलत दोनों. सो वैसे ही बाजार है, उसके नेचर के साथ हमें रहना पड़ेगा. लाल और हरा दोनों ही रंग है इसके. बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव इज इन दिस एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स, दिस वुड बी द टाइम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हिस्टोरिकल करेक्शंस हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, बट अभी जब होता है तब हमें पैनिक लगता है.
आज से 6 महीने के बाद, आप दिवाली की बात कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, एक हफ्ते में मूड्स चेंज हो जाएंगे। यही अगर 2-3 दिन की पॉजिटिविटी नहीं होती ना मार्केट में, तो शायद हमारे चेहरे और लटके हुए होते। 2 दिन में थोड़ा मूड बेहतर हुआ है ना। ऑफ कोर्स आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि थोड़ा मूड बेहतर हुआ तब जाके मैं यहां पहुंचा। बट आई टेल यू द फैक्ट, 15 दिन, एक हफ्ते में मूड, माहौल सब चेंज हो जाता है। अभी ऐसा लगता है कि पॉकेट में हाथ दे या ना दे, एक हफ्ते की मार्केट में अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, हरा रंग आ गया ना, दोनों पॉकेट अपने खंगाल के लगा देंगे। बट आई बिलीव, लेट्स बी अ रैशनल इन्वेस्टर, लेट्स लुक एट द मार्केट रैशनली, और यहां से वीकली SIP की करने की बहुत बहुत जरूरत है। Sir, in your keynote, you mentioned about roadways having 2 lakh kilometers, what we are looking at. You talked about defense, you talked about chemicals, you talked about EMS. So what, according to you, at this stage when we are standing, what are the must-buy sectors which you would advise the investors to follow? What are the sectors which is a must-avoid sector for our audiences here? अब हुई ना मुद्दे की बात। So must buy sectors for me, according at the current situation, is of course banking space is a must buy, because they're looking at the rate cut cycle where we are standing. Of course there is a possibility. Again मैं सुबह की एक एनमी की मीट की बात से आऊंगा। वर्ल्ड वाइड टर्की, ब्राजील, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी महंगाई, इन्फ्लेशन हद से बाहर है। आप भी इन सब देशों में अगर ट्रैवल किए होंगे इन द रीसेंट पास्ट, आपने देखा होगा कि आपको कितने डॉलर कन्वर्जन कराने पड़े हैं। सो द इन्फ्लेशन इज स्काई रूटेड हियर इन इंडिया। RBI हैज रियली मैनेज्ड इट वेरी वेरी वेल। सो मुझे लगता है कि रेट कट की साइकिल में कटौती हो सकती है, और जिस हिसाब से लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया जा रहा है, बैंकिंग इज द टॉप सेक्टर। दूसरा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अच्छा स्पेस है। टूरिज्म वो एक अच्छा स्पेस है जिसमें होटल्स वगैरह वगैरह कंजम्पशन प्ले के हिसाब से आता है। हॉस्पिटल स्पेस, इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मार्केट खराब है, प्लीज, सो उस लिहाज से नहीं, बट केपेक्स बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल स्पेस में केपेक्स बहुत बड़ा है अक्रॉस इंडिया। ईदर द हॉस्पिटल्स व्हिच आर इन ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ और नॉर्थ, वेरेवर, और पैन इंडिया हॉस्पिटल्स, केपेक्स है। तो these spaces are looking very very interesting to me. Some of the spaces in the NBFC arena, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस, ये अभी मैं अवॉइड करना चाहूंगा। Some of the parts of media also मैं अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि नंबर्स नहीं है। Some of the pockets of cement जहां पे केपेक्स नहीं है वो अवॉइड करना चाहूंगा। So these are the some pockets where I would like to avoid, क्योंकि जहां पे मुझे लगता है कि पेन कुछ ज्यादा है। एक चीज जरूर कहूंगा, सेक्टर्स अवॉइडेंस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अभी रहेगा आप सभी के लिए वो है स्टॉक स्पेसिफिक कहां अवॉइड करना है। आप जो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बहुत गंगो थे, अभी कोई सज्जन मेरे को पूछ रहे थे कि साहब SME में क्या करना है, ये भी एक शायद क्वेश्चन होगा आप सभी के दिमाग में। देखिए, ये स्पेस में एग्जैजरेशन जरूर था। अब आपको चूज करना है और डिफरेंशिएट करना है मेंस वर्सेस बॉयज, दैट इज अप टू यू। बट आई वुड स्टिल से जो ओवर एक्सेसिव वैल्यूएशंस पे है कुछ मिड कैप्स, उससे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हो सकता है कि वो वैल्यूएशंस अभी भी बाजार को महंगे लगते हैं जहां पे रीअलाइनमेंट नीचे की तरफ हो सकते हैं। सो जहां पे वैल्यूएशंस कुछ जरूरत से ज्यादा है, ग्रोथ नहीं है, उसे जरूर अवॉइड करना है। Sir, you are focusing more on fundamental research rather than the trading aspects. We talked about sectors. So if we combine these two aspects, so in terms of the timelines and in terms of the research which goes into identifying these sectors. So if I look at say 1 month, if I look at say 6 months, and if I look at say 1 year down the line, so आप कौन से sectors suggest करोगे जो अभी हम invest करें, कौन 6 महीने बाद अपने उसको review करें, और कौन से साल भर बाद करें, और इन sectors में with your experience
अपने कैसे इसको द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैज दैट चेंज्ड या व्हाट शुड बी स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू बिफोर आइडेंटिफाइंग दीज आर द सेक्टर्स और stocks which you should look into, and if you can suggest some stocks also, I think our audience would be delighted on that. देखिए ऐसा है नीरज जी, स्टॉक्स के बाहर स्टॉक्स नहीं कहूंगा तो आपने कह रखा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड को भी इसको इस इंसान को जाने मत देना, वो तो मैं समझता हूँ, बट ये प्लेटफॉर्म की मर्यादा रखते हुए मैं ओपन आई वुड नॉट एबल टू वोंट एबल टू डिस्कस ऑन स्टॉक्स ऑन अ प्लेटफॉर्म बेसिस. ऑफ कोर्स वन ऑन वन में हम बात करेंगे. रही बात शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, बात तो वही है क्या करना है. देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको रिकवरी प्ले देखना चाहिए. ऐसे स्टॉक्स जहां पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड गिरावट आ गई है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो भी, उसमें एवरेजिंग कर लीजिए, रिकवरी प्ले ले लीजिए. अभी रिकवरी प्ले करना जरूरी है. मैं कोई सेगमेंट के साथ नहीं जाऊंगा, कोई सेक्टर के साथ नहीं जाऊंगा. आपके पास जो है उसमें आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है, ठीक ठाक है कि नहीं है. ऑफ कोर्स यू हैव टू गो बैक टू योर ब्रोकर और यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट स्टॉक फॉर योर ओन रीडिंग. वो आप देख लीजिए ठीक ठाक फंडामेंटल है, बहुत गिर चुका है, वो रिकवरी प्ले कर लीजिए. शॉर्ट टर्म मतलब मेरे मानना है कि 1 से 2 महीने का शॉर्ट टर्म मैं मानता हूं. एवरीबडी मस्ट बी हैविंग देयर ओन डेफिनेशंस फॉर दैट. मीडियम टर्म में मैं मानता हूं प्ले विथ ओनली लार्ज कैप. मीडियम टर्म में आपको लार्ज कैप प्ले करना जरूरी है. अगर समझ लीजिए कि आप सोचते हैं कि भाई जैसे नीरज जी आप बता रहे हैं दिवाली से पहले क्या होगा, अब मार्च तो चल ही रहा है, सो दिवाली इज नॉट टू फार. अब अगर दिवाली तक का आपको प्ले लेना है तो आई थिंक लार्ज कैप अरीना लुक्स द बेस्ट. गिरावट भी हो चुकी है, वैल्यूएशंस भी सस्ते हो चुके हैं, यहां पे बेस्ट प्ले हो सकता है. अब आप बात करोगे 1 साल से ऊपर, 1 year, 1 to 3 year maybe, then it should be a diversified portfolio जहां पे mid cap, small cap, large cap, all should be there. अमूनन हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2-3 अकाउंट तो होते ही हैं, आपके स्पाउस के, HUF के, तो ये तीनों ही 3-4 अकाउंट जो होते हैं ये सभी में ये अलग अलग अगर स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो दिस विल वर्क द बेस्ट. बट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई वुड स्टिल से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विल वर्क. बट अभी तो प्योर रिकवरी प्ले करिए सो डैट कि जितना आपको खून की बूंदे कम हुई है बॉडी से गिरावट पे, क्योंकि चिंता कंसर्न उसको तो रिकवरी करनी है, तो रिकवरी पे ही प्ले करना पड़ेगा. सो आज मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मुझे किस किस टर्म में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 6 महीने, साल भर और अभी? देखिए वन बिलीफ ऑफ माई एंड योर्स वुड बी कॉमन. व्हाट वुड बी दैट? आपका और मेरा ये बिलीफ एकदम कॉमन होगा, टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स. डू यू अग्री? यस. मल्टी बैगर 10 दिन 20 दिन में, 1 महीने 3 महीने में नहीं मिलेंगे, और अभी तो नहीं मिलेंगे. सो व्हेन यू वांट टू हार्प अपॉन दैट, make a 30-40% portfolio or a 50% portfolio for 1 to 3 years, and rest of the 50% you split it in the positional, that is 6 months, medium term which we call it as, और rest is आपको recovery play करनी है, वो 20-25% से करनी है. because I believe जिस मार्केट में आपने दिया है उसी से लेना है, और लेना मल्टीपल टाइम्स है, छोटा बड़ा नहीं लेना है. When you want to take multiple times from the market, please play for 1 to 3 year. 50% वहां पे diversify बना लीजिए. Watch list please, अगर आपने ready नहीं किया है, you should be ready with your watch list. But these are the stocks which I am eyeing at. हो सकता है आपके लेने के बाद 10% और नीचे आ जाए, 5% और नीचे आ जाए. Nobody can say that, nobody knows the bottom. But stick to that. आप अपने conviction से stick रहिए. मार्केट का 1 वीक का रिवर्सल एंड रिकवरी विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो इसके जस्ट पहले जो सेशन था वो हमारा AI के ऊपर था.
सो आप अपने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कई लोग ये सेशन देख के और इसके पहले भी सोचते हैं कि ठीक है, लेट अस आस्क एआई, लेट अस आस्क चैट जीपीटी. So two questions on this. First of all, in your firm, Anand Rathi firm, what role does this technology is playing in your research, and what do you advise our investors here in using this technology to identify and play in the stock market? I have a lighter answer to this, but just to give you a AI perspective, उसके बाद lighter में आता हूँ. AI में ऐसा है कि our app TradeMobi app has lot of applications which brings in lot of AI perspective on the disposal for our investors in terms of finding a good stock which is tactfully much better right now technically. तो वो बहुत सारे AI के हमारे tools है जो हमारे app में है which can help our TradeMobi app, Anand Rathi's TradeMobi app, which can help you in terms of identifying good trades which are positional and long term in nature. Added to that, AI की जो आप बात कर रहे हो, पहले तो मैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करूंगा, फिर आर्टिफिशियल की बात करूंगा, बिकॉज इवेंचुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस को फॉलो करता है. आज हम नेचुरल इंटेलिजेंस को वेट कम दे रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेट ज्यादा देने लगे, विच आई अंडरस्टैंड. मुझे ये कहना है नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, एआई विल फॉलो. कभी ऐसा ना हो जाए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे नेचुरली गलत करने लगे. सो आई बिलीव नेचुरल इंटेलिजेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी, everything has its weightage. The distinguished guests before the session, the capital market session, spoke really fabulously well. Artificial intelligence brings a lot of solutions for you with a perspective, but first is natural intelligence. सबसे बड़ी चीज घबराइए मत मार्केट से. Sir, these were few of my questions. I'm sure our audience would have definitely a few questions to pose to you. So we'll just have a few questions from the audience if they have any before we move on for the other part of the session. Any questions from the audience here? Yes, please. Can we have the mic for him, please? Sir, wish list according to you, because आपका wish list for the benefit of everyone होगा ना. So wish list in terms of क्या मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं? Yeah, नहीं your wish list, you said ना weekly basis you go for the SIP. So what we can go weekly? सर वही बोल रहा हूँ कि विश लिस्ट की बात कर रहे हैं. अगर आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम वन ऑन वन ले लेंगे. बाकी हमारी विश लिस्ट एट आनंद राठी इज ऑलवेज रेडी. जी सर. एनीवन एल्स? आई एम नॉट एबल टू. यस सर. नहीं सर, ये सब नेचुरली है. समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, उन्होंने पैसा निकाला है. इट इज एज सिंपल एज दैट. एब्सोल्युटली इट्स नेचुरल. सर देखिए, एआई की टर्मिनोलॉजी हम इतना यूज करने लगे हैं और सुनने लगे हैं अपनी लाइफ में, शायद हमें सब कुछ एआई ही दिखता है. ऑफ कोर्स एल्गोरिथम इज पार्ट ऑफ द करेक्शन. जब भी आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, थिंग्स गो इन लूप, एंड दैट्स ऑलवेज देयर बिकॉज एल्गोरिथम ट्रेड्स आर क्वाइट बिग इन द मार्केट्स, इन द डेरिवेटिव मार्केट्स टू बी स्पेसिफिक. बट अभी जो सिचुएशन है, इट्स नेचुरल फिनोमिनन. हमेशा मार्केट्स में जो गिरावट होती है, technology always plays a role, but eventually it is a natural fundamentals which got deteriorated somewhere, and that's why there was an exit of money. जी सर. समझा नहीं सर. चलिए वही रिपीट कर देता हूँ. अभी का जो इन्वेस्टमेंट थीम है बहुत सिंपल है. वो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. ऑफ कोर्स जो टैक्स कट्स, ये सब तो बहुत फायदे में होगा.
पर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के सब सेक्टर्स जो है वो मैं बता देता हूँ. ऑटो स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ऑटोमोबाइल, इसमें सब कुछ आ जाता है, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दूसरा है QSR का स्पेस, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स. ये स्पेस काफ़ी अच्छा है. एयरलाइन स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है. टूरिज्म स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो जहाँ पे अभी जो AI का एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, कहीं लास्ट में एक तस्वीर दिखाई थी बैंगलोर एयरपोर्ट की. तस्वीर तो आपने देख ली, हाउ क्राउडेड इट वाज. सो ये पूरा जो स्पेस है विच इज़ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एटलीस्ट कुछ नहीं तो 20 से 25% या 30% का पोर्टफोलियो आपका इस तरफ टिल्ट होना चाहिए. सिद्धार्थ जी सर, नमस्ते. अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, तो आपको क्या लगता है उस समय मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा? वही मैं कह रहा हूं, जब हमें कोई दिन बहुत डराता है ना, वो डर आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है. तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ सेक्टर्स में इंपैक्ट करेगा, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इंडिया वुड बी बेनिफिशियल ऑफ नेक्स्ट 4 years इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द रोड मैप US डिसाइड्स टूवर्ड्स द वर्ल्ड और ट्रेड्स टूवर्ड्स द वर्ल्ड. इंडिया वुड बी ऑल इन ऑल बेनिफिटेड, बिकॉज इंडिया का भी कोई ना कोई चैलेंज जरूर होगा जहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा, कुछ सेक्टर्स होंगे, बट इवेंचुअली आई बिलीव इसका जो इम्पैक्ट है, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट, वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की तरफ ही जा रहा है. So Siddharth last ji, question namaste. from our past president. Yeah. सिद्धार्थ जी नमस्ते. मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से आ रहा है. हाँ, लाइट बहुत है ना. सर शेयर मार्केट है ना, सर शेयर मार्केट है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पर मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट हमेशा अहेड ऑफ टाइम्स होता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है. एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोविड में लॉकडाउन कब से लगा? लॉकडाउन कब से लगा 2020 में? मार्च 24 या 23-24 तारीख के आसपास से, 23. मार्केट ने जो करेक्शन देना था फरवरी में खत्म कर दिया. तो वो जो 5% की आप जो बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो 5% का जो अर्निंग्स है, वो मार्केट ने ये करेक्शन भी देख लिया, उसको डिस्काउंट कर दिया. अब जो आने वाले क्वार्टर्स है, जैसे कि चौथे तिमाही के नतीजे आएंगे 15 अप्रैल के बाद, Q1 के नतीजे आएंगे, ये फर्स्ट Q4 के नतीजे करीबन 8-9% दिख रहे हैं, Q1 के नतीजे 12-13% दिख रहे हैं. तो अब क्या है कि स्लोली स्टेडीली जो रेशियो है वो ऊपर के तरफ जा रहा है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस करेक्शन है, बारिंग 2-4% हियर और देयर, प्राइस करेक्शन इज ब्रॉडली डन. सिद्धार्थ जी, जी सर. you were talking about the auto sector looking good current scenario में. My question to you on this is, given the kind of tariff situations India and US are looking forward to, I think India has already announced a 15% tariff on imported vehicles. What is the impact of such a tariff or a zero tariff on the Indian industry? I look forward to a challenging situation in the auto industry. That is my take. Your views I would be soliciting. And the second question, I was reading about crypto becoming a reserve currency like the dollar. It is now. Where do you see the crypto in the future? Thank you. Second question first. I am not an expert of crypto, so I have as much as knowledge what you possess. So I'm not an expert because DNA of the way market has a volatility DNA, my DNA is only equities and nothing else. So you may find me biased towards it. But eventually talking about auto space, I believe auto space shouldn't be seen as a consolidated sector. You have to break it up. For example, what you are saying is correct to an extent to passenger vehicle. But when I talk about two-wheeler space, discretionary consumption comes in play. Why? Why this 5% earnings came to 5% from 20% to 5%? Because somewhere since 1.5 years, rural India was not performing. And there was a degrowth in rural India in terms of consumption, which has started picking up. And which is
visible in the sales numbers of two-wheelers month after month. So if I segregate two-wheelers to passenger vehicle, two-wheelers looks most interesting. Not because of whatever Trump does or whatever US policies or tariffs come, it's a completely pure play domestic consumption. Yes, on the domestic side, there can be a abrupt or a unexpected move or tariff situation comes, and that will definitely impact. But again, there also somewhere or the other, Indian companies or automobile space has always insulated and resilient for that. So any kind of a tariff further comes will be a knee-jerk reaction and opportunity to enter the auto space. Thank you, sir. We'll take up any further questions offline. Many thanks for the wonderful answers. And to end the session, may I request Amit to please take the session forward. Hello. Thank you, Neeraj. Ladies and gentlemen, fellow members of VIPCA and our esteemed guest, as we approach the end of this truly remarkable 17th annual conference, it falls upon me, Shri Amit Agrawal, Joint Secretary of VIPCA, to express our heartfelt gratitude to all those who have contributed to making this event a big success. Firstly, a huge round of applause for Sri Siddharth Sedani, who just delivered a captivating session on market volatility and recovery. Your insights, sir, on navigating the complexity of the capital market were truly invaluable. I request CA Bajrang Lal Agrawal to kindly offer a memento to Sri Sedani as a token of our appreciation. Please put your hands together and give big round of applause.